Good morning, everyone. From today, we are going to revise some previous chapters that is already discussed. That is, from first chapter we will start, and then we will come to second, third, and fourth, and so on. All the chapters revision. So, firstly, for this first chapter, I am going to revise all the important derivations which were really confusing. All right. So, from first. I am going to start this ring distribution of charges, all right, just because rest of the things are definitions and not frequently asked in board examinations. So these are the derivations which are frequently asked. So revise all the definitions and all the notations, all the basic concepts, and we will discuss here only the important derivations. All right. So this one is a charge is distributed uniformly over a ring of radius a. Obtain an expression for the electric field intensity E at a point on the axis of the ring. Hence show that for points at large distances from the ring it behaves like a पॉइंट चार्ज. देखिए ये हमने इसको बहुत पहले पढ़ रखा था, जिसमें एक चार्ज है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको एक रिंग के फॉर्म में, एक रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना था. ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ. क्वेश्चन तो आपने देख लिया, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. Here I will solve only the solution and not I will not write the language of this derivation, just because I have already written it. I will only say it in words, so you have to memorize and write it in proper format in your examination. Consider this is the ring having radius A and charge distribution. If I say the Q charges as total charge, Q is uniformly distributed. Consider very small element of this ring. This element is of length dq, as the total charge Q is distributed over this. Consider the charge dq is distributed here, and the length of this element is what? Consider this as dl. All right. So the total charge is Q. Total charge is Q. All right. So if the total charge is Q, then dq will be equals to how much? एक dq कितनी लेंथ के लिए है? dl लेंथ के लिए है. So for 1 unit length we will calculate charge and multiply it with dl. So for 1 unit length q by total length कितनी है इसकी? अगर रेडियस a है, स्मॉल a, then this will be q by 2 pi a circumference, and now multiplied by how much? Length dl. So this will be dq. All right. Now as the magnitude of the E will be how much? The magnitude of the E will be given by dE is equals to, if I say 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट को अगर मैं k यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हम अब इस लेवल पे हैं कि हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, k चार्ज बाई r स्क्वायर, देन दिस विल बी अवर रेडियस इलेक्ट्रिक फील्ड. सो दिस विल बी k, dq की जगह पुट कर दीजिए 2 pi a एंड dl बाई r स्क्वायर. ऑल राइट. ये सारा कुछ आपने देख लिया, यहाँ से उठा के मैंने इसको रखा. अब हम क्या जानते हैं कि देखिए यहाँ पे इस फिगर को मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये तो केवल रिंग समझाने के लिए था. ये है हमारा वो रिंग, ठीक है, और ये इसकी रेडियस हो गई a. मान लीजिए किसी दूरी पे पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. इफ़ दिस डिस्टेंस इज x and element is here, it is dl having charge dq. If this distance from here to here it is r, then we know r is equals to root over of x square plus a square हम लिख सकते हैं. यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा
ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होगा कि इसके जो डायरेक्शन होगी वो राइट हैंड पाम रूल से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे रूल्स मैंने आपको बताए थे, है ना। जैसे मैंने राइट हैंड थंब रूल के लिए कहा था कि ये करंट है तो इसकी डायरेक्शन होगी और ये ऐसे इस तरह को तिरछा हो जाता है, तो इसकी डायरेक्शन को प्रॉपर रिवाइज करिएगा। अगर इसकी डायरेक्शन जो रिजल्टेंट है, देखिए हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वाला जो है ये किधर डायरेक्शन देगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा DE, ठीक है। ये वाला जो है ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड DE देगा। तो इनके जो अब इस तरह के कोई भी एलिमेंट कहीं भी लें वो इस तरह से कोनिकल टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराएगा और सभी के हर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी सिमेट्रिकली होगा। तो इनको अगर हम सभी ये जितने भी अगर मान लीजिए यहाँ 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 बहुत सारे रिंग्स, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, सबके लिए एक कंपोनेंट मान लीजिए अगर ये एंगल हमने रिप्रेजेंट किया इफ इट इज़ थीटा, ये वाला एंगल, ये एंगल आप थीटा कह लीजिए या ये एंगल थीटा कह लीजिए, सभी सामने वाले ये एंगल थीटा, तो ये इक्वल एंगल ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। दिस विल बी DE cos थीटा एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन दिस विल बी DE sin थीटा। ये नीचे वाला क्या होगा DE sin थीटा। यहाँ आप देख पा रहे हैं हर DE sin थीटा के लिए एक अपोजिट डायरेक्शन में DE sin थीटा है, देन इट विल कैंसिल आउट, ओनली DE cos थीटा विल सर्वाइव फॉर all the ring, alright, या all the elements of the ring. So we can say DE will be equals to how much? DE cos थीटा, केवल वही बचेगा DE cos थीटा, यही बचेगा। अब देखिए ये जो E हमारा रिजल्टेंट होगा E will be equals to 0 to 2 pi a, यानी पूरी लेंथ के लिए 2 pi a, एंड DE cos थीटा हम लिख सकते हैं। DE की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी निकाला है, इसको यहाँ रख दें 0 to 2 pi a और DE k क्यूब बाई 2 पाई a DL बाई आर स्क्वायर हो गया। और cos थीटा की जगह आप देखिए ये cos थीटा है, cos थीटा यानी ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है यानी x बाई आर। अब इस वैल्यूज़ को सबको पुट किया जाए, देखिए कौन कौन कांस्टेंट क्वांटिटी है, आई एम टेकिंग इट आउटसाइड, k क्यू x बाई 2 पाई a, ये क्वांटिटी कांस्टेंट है। r भी तो डिपेंड नहीं कर रहा है लेंथ पे, r रेडियस, तो ये r तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, देन वी कैन टेक r ऑल्सो आउटसाइड, r क्यूब, एंड दिस विल बी 0 to 2 पाई a dl। सो दिस विल बी द रिलेशन k क्यू x कितना हो जाएगा, k क्यू x बाई 2 पाई a 1 बाई r क्यूब, इट इज l 0 to 2 पाई a, ऑल राइट। सो ऑन सॉल्विंग इट 2 पाई a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन k की जगह मैं पुट कर रहा हूँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो अभी तक मैंने k यूज़ किया था, और 2 पाई a, ये 2 पाई a है, ये r क्यूब है, 2 पाई a कैंसिल आउट यानी qx बचेगा, और यहाँ पे r क्यूब, r की जगह एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है ना रूट ओवर में, सो r का क्यूब यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट जो है उसका भी क्यूब, ठीक है। तो दिस विल बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया, और इसकी पावर 3/2। सो दिस इज़ द रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये तो मतलब मॉड्यूलस है, ठीक है। अब अगर इसका हम डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन इसका क्या होगा, along the एक्सिस। अब अगर मान लीजिए मैंने ये कहा कि ये बहुत दूर है, ये पॉइंट मैंने कहीं इनफाइनाइट पे ले लिया, जब इनफाइनाइट पे ले लिया तो इसका मतलब क्या हो गया, इस वाले एक्सप्रेशन में देखिए a है और x है, a के कंपैरिजन में x बहुत बड़ा हो जाएगा, तो a यहाँ पे गायब हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेशन हमारा हो गया पहला सोल्यूशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नाउ लेट्स सी सेकेंड वन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डाइपोल्स। डाइपोल्स के बारे में तो खैर मैं आपको केवल रिवीजन करा दूं क्योंकि वो काफ़ी इजी है, हमने पहले भी देखा है। डाइपोल्स में भी इफ डाइपोल इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ two charges equal and opposite separated by very small distance, all right. So the electric field of the dipole can be calculated easily, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू,
ठीक है, हम इसको फिर से लेके चलते हैं, देखिए सॉल्व कर लेते हैं वन बाय वन डाइपोल्स के लिए। डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डाइपोल के पास, तो फर्स्ट केस इसमें होता था एक्सियल पोजीशन, सेकंड होता था इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, एक्सियल पोजीशन के लिए हम क्या करते थे, देखिए यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाई वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इफ आई से दिस डिस्टेंस इज 2a, वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विच इज एक्सियली सेपरेटेड, यानी P पॉइंट कहाँ पे है, एक्सियल पोजीशन पे है। एज वी नो द डाइपोल मूवमेंट हैव डायरेक्शन फ्रॉम माइनस P तो माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये होती है, और डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग दोनों के कारण हम लिखें। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये जो सेंटर है इसका O, यहाँ से इस P पॉइंट तक की दूरी ये हुए है R, तो ऑब्वियस है माइनस क्यू तक की दूरी होगी R प्लस A और प्लस क्यू तक की दूरी होगी R माइनस A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर माइनस क्यू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही, और माइनस क्यू की जगह माइनस क्यू यूज़ करेंगे, और आर कितना है इस बार डिस्टेंस आर प्लस ए, ये वाली दूरी भी तो जुड़ जाएगी ना, यहाँ से यहाँ तक ए है, देन दिस विल बी आर प्लस ए होल स्क्वायर, और पी की डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो और पी के एक्चुअली अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली किधर होगी, टूवर्ड्स लेफ्ट होगी, क्यों, क्योंकि माइनस क्यू के कारण है। तो पी पे कैसा फील्ड काम कर रहा होगा, यहाँ माइनस क्यू की तरफ सारी फील्ड लाइन जाती है ना, यानी फील्ड लाइन यहाँ से निकल के क्यू की तरफ, यानी लेफ्ट साइड फील्ड काम करेगा पी पॉइंट पे, यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू के कारण काम करेगा, दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन, और प्लस क्यू के कारण जो काम करेगा दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट। तो ये हो गया माइनस क्यू के कारण, अब मैं प्लस क्यू के कारण भी लिख लेता हूँ, ई प्लस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और प्लस क्यू बाई डिस्टेंस, दिस टाइम डिस्टेंस इज आर माइनस ए स्क्वायर, है ना, एंड दिस इज अगेन डायरेक्शन ऑफ पी, बट दिस टाइम इट इज पॉजिटिव ऑल, है ना, तो दिस इज the effect of minus q and plus q. Now combination, just because we want to calculate the electric field due to the whole dipole, this E axial can be written as the vector sum of E plus q and E minus q. Alright, now put these value, q दोनों में है, ऊपर q ले लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, वो बाहर ले लिया, this becomes, पहले प्लस q के लिए नीचे क्या है, r माइनस ए होल स्क्वायर है ना, और यहाँ माइनस साइन है दूसरे वाले में, तो इट इज आर प्लस ए होल स्क्वायर, एंड डायरेक्शन विल बी अलोंग डाइपोल मूवमेंट, है ना, तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन माइनस क्यू टू प्लस क्यू। अभी हमको ये नहीं पता, अभी हम केवल पी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, इसलिए मैं बार बार पी के इस फॉर्म में लिख रहा हूँ इसको, क्योंकि हमने एक यूनिट वेक्टर मान लिया है बाएं से दाएं, जिसको हमने पी कहा है, लेफ्ट टू राइट पी कहा है उसको, यूनिट वेक्टर को। नाउ सॉल्विंग इट, we will get q by 4 pi epsilon naught, and this becomes r plus a square, तो ये यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ra माइनस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2ra माइनस प्लस 2ra, यानी प्लस 2ra एंड प्लस 2ra प्लस 4ra ऊपर बचेगा, एंड नीचे a माइनस b a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b हो जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। सो दिस बिकम्स, देखिए यहाँ पे आपको याद हो P क्या होता है, Q इंटू 2a होता है, P मीन्स डाइपोल मूवमेंट, Q इंटू 2a, तो Q है और 2a यहाँ से ले लें, 2r बचा रहने दें, देन दिस बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2aq 2rp, एंड in the denominator it is r square minus a square whole square, and direction is along p. Now as r is much greater than a, क्योंकि डाइपोल के बीच की जो लेंथ होती है वो बहुत छोटी होती है,
वो एटॉमिक लेवल की होती है। तो आर इज मच ग्रेटर देन ए, देन वील पुट इट हियर। केवल आर को हम सर्वाइव कराएंगे, ए यहाँ पे निगलेक्ट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2rp ऊपर तो है, नीचे क्या हो जाएगा r की टू द पावर 4 एंड इट इज p डायरेक्शन। सो EXCL विल बी व्हाट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r क्यूब p दिस मच। ऑलराइट, तो ये हमने देखा। नाउ फॉर इक्वेटोरियल पोजीशन उसको देखते हैं। व्हाट वाज दैट? इन इक्वेटोरियल पोजीशन ये है एक डाइपोल, है ना। ये लाइन नहीं खींचनी चाहिए, केवल -q + q बनाना चाहिए, तो लाइन लेंथ के लिए केवल मैं बना दे रहा हूँ। दिस इज सेंटर, दिस लेंथ इज इफ आई से इट इज 2a, then this will be a, all right. This is the direction which is perpendicular and crossing from the it is actually the perpendicular bisector direction. So this at this position there is some point p, यहाँ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए +q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, अगर इस लाइन को हम जोड़ दें, ठीक है, तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना। तो +q के कारण अवे होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, देन दिस विल बी E + q। ये वाला जो डायरेक्शन होगा यहाँ पे -q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E - q, तो इनका रिजल्टेंट कहीं बीच में होगा। ऑलराइट, वी हैव टू कैलकुलेट दिस मच इफ दिस इज cos थीटा, है ना। तो मान लीजिए थीटा एंगल है, तो E + q का एक कंपोनेंट ये इधर होगा, है ना। ये कौन सा होगा? E + q और cos थीटा, और E - q cos थीटा नीचे होगा, E - q cos थीटा। लेकिन नहीं, ये साइन थीटा, ये अवे वाली की बात हो रही है, साइन थीटा, और ये भी साइन थीटा, और cos थीटा दोनों के इधर आ जाएंगे। E + q cos थीटा इस डायरेक्शन में, और E - q cos थीटा इज अगेन, क्योंकि ये भी एंगल थीटा है, क्योंकि अगर मैंने ये थीटा एंगल और ये थीटा एंगल माना, देन दिस विल ऑल्सो बी थीटा थीटा, बोथ आर थीटा। E - q cos थीटा। तो अब इन दोनों का तो सम होगा, यहाँ पे हम देखते हैं क्या होगा। तो उसके लिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले E + q - q, E + q विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस q वाला चार्ज और डिस्टेंस। ये अगर a है, मान लीजिए ये दूरी है जो यहाँ से यहाँ तक की है, इफ इट इज r, देन दिस डिस्टेंस विल बी r। एक ट्रायंगल ले लीजिए, r² + a² रूट ओवर में, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की ये वाली हो गई, देन दिस विल बी r² + a² ओनली, है ना, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर और रूट है। और ये किधर डायरेक्शन में होगा? अगर मैंने इसको कहा a b, तो b से p की तरफ, है ना। तो +q वाला b से p की तरफ, अलॉन्ग bp, ये अलॉन्ग bp। सिमिलरली E - q, it is 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by again this same thing, but this time it is directed along PA। देखिए P से A की तरफ, नीचे की तरफ, क्योंकि माइनस के साथ है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स लिए जाएं तो दोनों सेम है ना, दोनों की क्वांटिटी सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम है। E - q मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा हूँ, इट इज इक्वल टू E + q। All right, now we want to see what will be the resultant. So देखिए ये मैं साफ लिख दे रहा हूँ, ये है E + q साइन थीटा। थीटा एंगल सेम है तो साइन थीटा सेम होगा। ये E + q और E - q सेम हुआ तो E + q साइन थीटा और E - q साइन थीटा सेम होगा, और दोनों कहाँ हैं? अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। देन दिस विल कैंसिल आउट, यानी ये वाला एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ओनली दिस विल सर्वाइव। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? जस्ट बिकॉज दीज आर मैग्नीट्यूड्स आर सेम, तो साइन कंपोनेंट विल कैंसिल आउट, तो केवल कोसाइन कंपोनेंट जुड़ेंगे। सो E इक्वेटोरियल
विल बी इक्वल्स टू, देखिए P की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी ना, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है, लेकिन हमारा E किधर आ गया, इधर आ गया रिजल्टेंट इधर, तो P का अपोजिट यानी माइनस P के डायरेक्शन में होगा। तो मैं यहाँ पे अभी लिखूंगा इसी चीज़ को। सबसे पहले तो कौन कौन दो हैं जिनको जोड़ना है, E माइनस क्यू कॉस थीटा प्लस E प्लस क्यू कॉस थीटा, लेकिन डायरेक्शन मल्टीप्लाई करनी है तो डायरेक्शन है माइनस P यूनिट वेक्टर डायरेक्शन, माइनस ऑफ डाइपोल मूवमेंट डायरेक्शन। सो दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू 2, देखो E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों मैग्नीट्यूड बराबर हैं तो किसी एक को लिख लो, माइनस क्यू को मैंने लिख लिया, और कॉस थीटा देखो 2 हो गया, दोनों सेम चीज़ जुड़ गया। नाउ दिस टाइम माइनस 2, पुट द वैल्यू ऑफ माइनस E माइनस क्यू, इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by r square plus a square. Now this time put cos theta. Cos theta is equals to, just is theta, this is perpendicular, this is hypotenuse, this is base. So it is base upon hypotenuse. A by r root over of r square plus a square. So put this here. A by root over of, this is Q and this is a, r square plus a square. Putting this value, we will get, this is direction P, minus 2, माइनस तो है ही, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में लिख लेते हैं सब, QA 2QA एक साथ लिख लो, एंड पुट इट हियर, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो जाएगी पावर 1 + 1/2 3/2। सो देखिए ये 2AQ क्या है, डाइपोल मूवमेंट ही तो है, तो पुट इट एज माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस 2QA इज इक्वल्स टू P एंड डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2 एंड डायरेक्शन इज अलॉन्ग माइनस P, इसीलिए माइनस साइन लगा हुआ है। सो दिस इज ई इक्वेटोरियल डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों के लिए डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, एनी अदर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन? सी हियर वी हैव अ क्वेश्चन related to dipole. I have already written it. Here, calculate the electric field due to an electric dipole of length 10 centimeter and consisting of charges of plus minus 100 microcoulomb at a point 20 centimeter from each charge. ठीक है, तो देखते हैं, कह रहा है कि एक डाइपोल है जिसकी लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर, यानी प्लस क्यू, अगर मैं इसको प्लस क्यू कहता हूँ, इसको माइनस क्यू, आप कैसे भी बना सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10 सेंटीमीटर। ऑलराइट, नाउ कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस प्लस, ये इसकी वैल्यू दी हुई है प्लस 100 माइक्रोकूलम, इट इज इक्वल्स टू माइनस 100 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब ये कह रहा है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच चार्ज। देखिए ऐसा तब हो सकता है जब दोनों से बराबर दूरी पे हो, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, केवल यहाँ या यहाँ, जहाँ से ये इक्वल 20 सेंटीमीटर दूरी, मैंने मान लिया ये पॉइंट P है, वेयर इट इज दिस एंड दिस डिस्टेंस बोथ आर 20 सेंटीमीटर। Alright, now it is talking about electric field. So we want to calculate electric field. Now as we have seen in previous derivation for equatorial point of dipole, so the electric field, देखिए this we have represented with R, हम अपने derivation को बात कर रहे हैं, इसको मैंने क्या कहा था x, जो किसके बराबर था r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के। दिस इज a, दिस इज a, अगर आपको रिवाइज करा दूं तो, सो इट इज 5 and 5। ऑलराइट, सो दिस r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट ओवर, यही r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट ओवर अपने आप में ये पूरा यही है, तो क्या है 20 सेंटीमीटर दिया ही हुआ है। इसको मीटर में लिख लें, मीटर में कितना हो जाएगा 0.2 मीटर। So E equatorial will be 1/4 pi epsilon naught, P रखना है, P डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाई
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये फॉर्मूला अगर अभी आपको मैंने पढ़ाया याद हो तो। दिस होल थिंग कैन बी रिटन एज 9 इंटू 10⁻9 कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाई 2QA। 2Q 100 माइक्रो कूलाम, 100 इंटू 10⁻6 कूलाम, एंड A इज, देखिए यहाँ 10 सेंटीमीटर 2A है तो A कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर इंटू 10⁻2 मीटर। ठीक है, तो मीटर में रख लिया, डिवाइडेड बाई दिस होल थिंग आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। सो रूट ओवर वाला 1/2 अलग ले लो, इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई पावर ऑफ क्यू। ये पूरा 0.2 मीटर दिया है, रख देते हैं। 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाई सॉल्विंग दिस 6 - 2 - 4 -4 2 -6 -6 5 2 10 10 to power -6 6 2 8 8 में 6 गए, 2 गए 6। ये क्वांटिटी हो गई 0.2 इसका क्यूब। नाउ सॉल्विंग इट दिस बिकम्स 10⁻5। So it is actually 9 to 10⁻9 multiplied by 10 to the power -5 divided by इसको लिख दें 2/10, तो 2 2 4 2 8 बाई 10 भी है तो 10 to the power माइनस कितना हो जाएगा 2/10 10 to the power 3 -3, तो ये ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा, तो ऊपर क्वांटिटी बन जाएगी 10⁻7 और ये 9/8 multiplied by 10%. It is equals to 1.125 into 10 to the power -10⁻7 न्यूटन पर कूलाम। यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में यूनिट इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। हम कुछ और डेरिवेशंस और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आगे भी देखेंगे फर्स्ट चैप्टर के। ऑल राइट, थैंक यू।